evening and welcome to this exciting session on a very interesting topic and most important topic also, that is the managing diabetes. And normally and usually we have heard the diabetes from the medical fraternity or the medical practitioner, but this time going to have a different perspective, and that's the patient's perspective from an educator, a diabetes educator, Madam Geeta Iyer. May I request Krishnaveni Madam to please introduce her and take it forward. Yes, thank you so much. Geeta, welcome to MRL. And to talk about Geeta, friends, it will take a long time, which I am not going to take. Geeta has been a corporate employee also. She has a graduation in physics and an MBA in marketing. But diabetes made her to become a diabetic educator, certified by NDEP, that is the National Diabetes Educator Program. She is so passionate about the educating people. Her mission is to take every household the information regarding diabetes, pre-diabetes, everything to each and every household, so that people will be more educated and take care of themselves. She has a WhatsApp group which is going to be full now. It's already crossed 220 people, and in that you should see the information that one gets. She keeps exchanging notes as well as firing people who doesn't go for that. She has a whip in her hand, what to eat, what not to eat. And she is more important about, she gives importance to the regular checking. And as she says, for the self-proclaimed non-diabetics, even they should do their HbA1c and all that. You will know her passion when she talks. You will find it yourself, how passionate she is about and what has changed her into that level. And they say, no, only the wearer knows where the shoe fits. So it is good to hear from the horse's mouth. And there will be a lot of takeaways from her today, not only for us individually, but to our family members too. Thank you, Geeta, for coming and accepting our invitation. Please go ahead. Yes. Thank you, Veena ji. Thank you, Dr. Gupta. So before I actually share the screen and showcase my presentation, a big thank you to all of you. It's a grave topic. A lot of people take it very lightly. Since I have an audience which is very senior here today, I would request all of you to look at this presentation from 2 points of view. One is for your own self. I was told that the age group in this audience varies from 55 to almost 80. At every stage, diabetes plays a very different role in our lives. You know, as for younger people, we have to have very strict monitoring measures. Our tests and blood sugars have to be in control because we have a long way to go. But medical science, as we progress with age, gives us certain liberties. So, you know, everything that I present today may not be for every age group, but surely one is a takeaway for all of you here. The second takeaway is that unfortunately, there would be a lot of you where your children or grandchildren, depending on your age, are diabetic or pre-diabetic. A lot of them may never have tested, and they will never know. Once I take you through what the complications of diabetes are, what I would request all of you to do today is, once this presentation is done, call your children or your grandchildren if they're about 25 or 30 and ask them to do this one single test, HbA1c, because 50% of the diabetic population in India is actually undiagnosed. 57% people actually do not know that they have diabetes. And all of you know that if our blood sugar levels are high, what are the kind of complications it can lead to? It can be very, very bad complications, and I will take you through all of these in the presentation. The second thing that I'm going to cover is the patient's perspective today, where I will tell you a lot of things that we never ask our doctors. Okay, the other way of putting it is our doctors never tell us. No, but that is the very unfair way of talking about it, because most of us as diabetic patients, I don't know how many diabetics here today, but when we go to our diabetologists or doctors, no, we run away from their clinic. Nobody wants to spend more than 2 or 5 minutes with the doctors, because if our sugar levels are not okay, the doctor is not happy with us. That makes us feel very scared and very unsure about ourselves.
And because of that, we don't do our tests. Second is, if we do and if we have bad results on the report card, then our doctors are going to be very angry with us, and hence we don't want to spend time in the doctor's clinic, which is a very wrong way to approach this problem. Your doctor owes you explanation. You are supposed to ask your doctor questions. You are not supposed to spend only 5 minutes with your doctor and run away from the clinic. You're supposed to spend 20-30 minutes with your doctor, and your doctor owes you that much time. So it's a give and take. Having said that, I will now share my screen and I will project this presentation to you. Please, the format of questioning, I'm fine with whatever is okay with all of you. You can ask me questions along the way or keep them for the end of the presentation. I leave that to you. Can all of you see this, please? Yes, Geeta, we can. Okay, I'll go ahead. Okay, so this is the classic understanding that people have of diabetes. आप मोटे हो गए, आप obese हो, आप overweight हो, आपको diabetes हो सकता है. But that is a very, very superficial understanding of diabetes. And my generation, the generation which was born in the 70s, and the generation before me, which is around 1965 to 70 born, after that generation, we have seen diabetes coming at us like a pandemic. Everybody's scared of corona now, but corona is going to probably go away in 1.5 or 2 years completely, hopefully. But diabetes is going to stay with us. Okay, people do not understand that in India now, at least 15% of Indians are diabetic. So if I look at a population of 130 crores, easily 15 to 20 crore people in India are diabetic, which is not a very small number. Okay, so please, the passion or with the fear or the interest with which we talk about corona, please start talking about diabetes with that much interest and passion. Let me quickly take you through the statistics in India and worldwide so that we understand, what is the number of people that we are talking about. So International Diabetes Federation is a body. It's like a WHO for diabetes. And they are the people who do tests all over the world to try and figure out what is happening in the diabetes part of the world. So India is one of the 6 countries that fall in the Southeast Asian region. Throughout the world, 46 crore people have diabetes. And this was the data in 2019, 2 years back. So I'm sure this would have reached somewhere to the tune of easily 50 plus crores. What International Diabetes Federation projects is that by 2045, there will be 70 to 80 crore people in the world who will have diabetes. When we come to India, when we look at the year 2019, there were already 7.7 crore people who had diabetes in 2019, which is a huge number given our population. By 2045, this projection for India is 13.5 crores. That is the amount of people that IDF says will have diabetes by 2045. And according to me, these are very subdued or moderate numbers. The projections are very moderate. Diabetes is going to grow very fast. Okay, and today in the presentation, I'm going to share with you reasons that you would have never heard of, that these can be the reasons for diabetes. Now look at this. If 7.7 crore people were diabetic in India, there were another 57% of this 7.7 crores, which is 4.5 crores, who never knew that they have diabetes. So, probably one fine day they have a urinary tract infection, or somebody has some problem with their eye, or, they realize that they have a wound in their feet which is not getting healed for a long time. Only when it comes to conditions like that, people go and do a blood checkup, and HbA1c and the fasting blood sugar and postprandial blood sugars become one of those tests, by the way. And then you have gone for something else to the doctor, and then your doctor tells you that, Baba, you're diabetic. And when people become diabetic, I'll give you an average number. Their fasting readings are in the range of 300 because they didn't check for probably 3, 4, 5 years. This test called HbA1c, hemoglobin test, is supposed to be done once a year, even for non-diabetics, because we do not know when diabetes can come to us. So like we do our cholesterol test, lipid profiles and other tests every year, we are supposed to make the HbA1c test a part of our blood work year on year. Okay, because if you realize earlier that you're diabetic, you can control a lot of these complications and ensure that you don't get into trouble. So we are looking at
7.7 plus 4.5. We are already talking about 13 crore people who could be diabetic in India. And this projection of 2045, which is there now, is actually meaningless because it may be much more by the time it is 2045. Okay. Now, another 2.5 crore people in 2019 were something called as IGT. IGT means impaired glucose tolerance, which in simple terms is borderline diabetes, or we call it pre-diabetes. Now, pre-diabetes is a stage where your fasting blood sugar comes to around 120, 125. We all know what is the normal range for fasting, 70 to 110, with some liberties for slightly older people. But even in younger people, we have seen that in impaired glucose tolerance stage, people have fasting blood sugars of 125. Now, pre-diabetes can also cheat us. Okay, I have 3 or 4 friends who became diabetic in the last 10 days, whose fasting sugars were superb. They were 89, 90. Okay, but their HbA1c showed 6, which means they are in the pre-diabetic range. Okay, the point is the fasting sugar is okay, but after meal, blood sugars are going very high. So if you check only your fasting and your fasting is below 110, you cannot claim that you're a non-diabetic because you never know what is happening to your blood sugar levels after food. So you have to check both fasting and 2 hours after food. And the best way to check and confirm is do your HbA1c, and I will tell you what HbA1c is as we go along. 10% to 11% people are diabetic in India, and sorry, they have pre-diabetes in India. So again, 130 crores may say, if you talk of 10%, 13 crore people are pre-diabetic. So imagine the number. We are already talking about some 25-30 crore people being in the pre-diabetic to diabetic zone, which takes us to almost 30%, which is a huge number. Okay, and nobody seems to be paying attention to this problem. This is the real pandemic. Corona will go away, but diabetes is going to stay with us. Now, again, if you look at the mortality rates, in the Southeast Asian region, there are 6 countries. Okay, the deaths that we saw in 2019 because of diabetes was 12 lakhs. Do you know how much India contributed to those 12 lakhs? 10 lakhs. So 1 million people, 10 lakh people die every year in India because of diabetes related complications. Now, these complications could be heart attack, it could be a stroke, it could be kidney failure, okay, it could be liver issues. So there are a lot of things that happen when our blood sugars are not controlled properly for a long time. 3, 4, 5 years, if you are in uncontrolled high blood sugar levels, then these things can start happening to our bodies. India contributes, so it is 90% of the deaths in the region is from India, which is a very, very sad state of affairs. Even countries like Bangladesh and Pakistan score lower than India. Okay, so we have heard of ICMR a lot now because of Corona, Indian Council of Medical Research. In 2016, 17, they keep doing these tests year on year, but I have the facts from 2016. They did a random sample with around 57,000 people across 15 states. And what they found out is that 12% of India has diabetes. So in 15 states, which is a mix of metros, non-metros, and smaller towns, they found that 12% people are diabetic and 57% people. So this 57% people who do not know that they have diabetes, they are in deeper trouble than people who know that they are diabetic, because people who have diabetes are hopefully doing something about it. They are trying to at least control their sugar levels. But this 57% people refuse to check. One is, even in a place like Bombay, for example, my own cousins, they do not know what an HbA1c is. Their only excuse is कि doctor ने नहीं बोला करने को. Papa, but it is your life. You have to do, you have to find out, and you have to do. Right? Now, forget if the condition is like that in Bombay, imagine what is the condition in smaller towns in India. People do only fasting, and the day they have to do fasting, previous night they eat less. So morning blood sugars are a little okay. Whom are you cheating? So on that particular day, if your blood sugar level is 100, 110, your doctor will say सब कुछ ठीक है, आपको problem नहीं है. But आपने किससे झूठ बोला? Doctor से झूठ बोला कि आपने खुद से झूठ बोला? So this is what people have to understand, कि in diabetes you're not cheating your doctor. Your doctor you meet for 1 hour in the whole year. If you're meeting your doctor 4 times, 10-15 मिनट का मीटिंग होता है. 1 घंटे के लिए मिलते हो आप अपने डॉक्टर के लिए साल में. आप खुद से मिलते हो रोज. तो यू आर लाइंग टू योर सेल्फ. इफ यू आर सेइंग कि मैंने थोड़ा सा झूठ बोल के कर लिया टेस्ट मेरा बराबर, लेकिन आपका ब्लड शुगर तो हाई है.
आपका रिपोर्ट सही आ गया क्योंकि आपने कुछ तो मैनिपुलेशन कर लिया. So this is the wrong way to check, and that is why HbA1c is the gold standard in diabetes management. Yeah. Now, diabetes, unfortunately, like I said, after the 1960s and 70s, it started appearing in people's lives much earlier. I became diabetic. Now I'm going to be 50 this year. I became diabetic when I was 36, which is 14 years back. And when I tested my blood sugar levels, my fasting was over 300. So I also did not know for a very long time that I may have diabetes. And that time, again, I did not do my annual checks properly. And how I realized this, because in my office when I was working, I collapsed. I had a vertigo attack and I collapsed. And then I was taken for all the tests, and there I realized that I'm also diabetic. So that is how. And it is earlier, before the 19, in the older generation, your generation, people became diabetic at 60, 55, 70, 65, and that is age related diabetes. It has nothing to do with your lifestyle or your stress, or the fact that you've been eating bad kind of food or alcohol or smoking. It is not related to that. Yours is actual real adult diabetes which happens after 55, which is manageable. But in the generations now and the generations after me, people are becoming diabetic at 20, 22, 18. And earlier, people would say that adult onset diabetes is always type 2 diabetes. Now, doctors are seeing a trend that even at 45 or 50, you can become a type 1 diabetic, which means that from the word go, you have to be on insulin. Medicines are not going to help you because all your beta cells in the pancreas have died. So this is a very, very big problem in India. In cities, we are looking at 9% prevalence. In rural areas, we're looking at 8% prevalence. While the slide says that this estimate may be too high, I don't think so. The point is that people do not know. People don't test. So if you do not test, how will you know? I am saying that there could be 10 to 12% of IGT prevalence in India, and people may not even realize. Okay. And out of these people who are pre-diabetic, because they never know, or because people think मैं तो borderline diabetic हूँ, मेरे को तो कुछ होगा नहीं. They do not change their lifestyle. Nowadays in my group, like Vindaji said, there are a lot of people who do not want to take medication. They do not want to control their food. They do not want to walk. They do not want to even see a doctor despite being pre-diabetic. Their HbA1c on their report card says 6.2. So 5.7 to 6.4 is pre-diabetic. At 6.2, 6, they are saying हमको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है. There is an old classmate of mine, okay, whom I have now come in touch with after 20 years. She checked 1 year before, when the lockdown started last year in March. Her fasting reading was 360 and her postprandial reading was 480. She did nothing about it for 1 whole year. Today her HbA1c is 15. So she has to be on insulin. Now no medicine is going to help her because उसने खुला छोड़ दिया. So it has become so bad, and now because she knows that she's going to be on insulin, she's further delaying going to the doctor. So what are the diabetics doing? They are in denial mode. ठीक है, कम है तो भी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ज्यादा है वो हमको इंसुलिन पे लगा देगा तो भी डॉक्टर के पास नहीं जाना है. तो आप जाओगे कभी? Once you have a heart attack, will you go to the doctor? Once you have a stroke, once your kidneys fail, once you have gangrene and you have to amputate one of your legs, एक पैर काटना पड़ेगा, तभी आप डॉक्टर के पास जाओगे कि आप पहले जाओगे? And I think our generation has to learn from your generation. All of you went for checks regularly. There was more of mental strength, about facing facts and life. I think our generation, my generation and the younger generation to me, we don't have the guts. ठीक है, diabetes हो गया. Everything is not our fault, right? Some things happen because of sometimes genetically, hereditarily हो जाता है. As Asians, we are more prone to diabetes. So people just are in denial mode. हमको face ही नहीं करना है कि हमको diabetes हो सकता है. Like बोलते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, मेरे साथ यही हो रहा है. My closest friends don't check. लेकिन ग्रुप में आके जो मेरे लिए strangers हैं, उन लोग सुधर जाते हैं. उन लोग का HbA1c 10 से 6 हो जाता है, 10 से 7 हो जाता है. लेकिन my closest friends are 80 kilos, 90 kilos heavy. They don't check. बीपी भी चेक नहीं करते हैं लोग आजकल, मतलब छोड़ दिया लोगों ने चेक करना बिकॉज उनको डर लग रहा है. सो आई थिंक दैट योर जनरेशन, वी हैव टू लर्न फ्रॉम योर जनरेशन.
And I would sincerely request all of you to pass down this message to your family members after this meeting, today, tomorrow, in this week. If you're, I'm sure some of you have grandchildren also who are adults. So please tell them to go and do their HbA1c check today. Especially if you or their parents are diabetic, because if your parents are diabetic, you are a high risk. So you can have diabetes faster because your parents are diabetic. So what are we concluding from this section is that India is in the midst of a huge healthcare crisis and people are ignoring it. Okay. So what is the diabetes story? Let me now get into the medical part of it. Okay. If you can see here, स्टमक लिखा है ना, यहाँ पे स्टमक दिख रहा है आपको, उसके नीचे वो क्रीमिश कलर का छोटा सा जो हिस्सा है वो पैनक्रियाज है. नो पैनक्रियाज एक ऐसा एक्सोटिक ऑर्गन है बॉडी का जो दो तरह के फंक्शंस करता है. इट कैरीज आउट एन एंडोक्राइन फंक्शन व्हिच इज रिलेटेड टू शुगर कंट्रोल एंड देयर इज एन एक्सोक्राइन फंक्शन व्हिच वी नॉट टॉक अबाउट टुडे. सो what happens, okay, I'll come to the explanation on pancreas a little later, but what really happens, ये glucose, diabetes, sugar, क्या है ये सब, मतलब कोई हमको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगा तो दिस इज योर एक्सप्लेनेशन. हम जो भी खाते हैं स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स, वो बॉडी में जाके ग्लूकोज बन जाता है. ओके, व्हाई इज द फूड कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज? बिकॉज हमको जो रोजमर्रा की जिंदगी हमको जीनी है उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए, और ये जो खाना अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है वो हमारे ब्लड से होके हमारे सेल्स में जाता है, हमारे मसल्स में, हमारे बॉडी के हर हिस्से में वो मसल्स में घुसता है. Once it gets into our muscles, it gives us energy to do our day-to-day things. Okay. Now, when we eat something, okay, हमारा जो पैनक्रिया है ना उसको समझ आ जाता है कि ये बंदी ने कुछ खाया है, and then the pancreas release insulin. Okay. Then the pancreas release insulin because pancreas has detected कि बॉडी में अभी शुगर बढ़ रहा है. ठीक है ना. तो पैनक्रियास क्या करता है, वो पैरेलली इंसुलिन रिलीज करता है और शुगर लेवल को ज्यादा बढ़ने नहीं देता है ब्लड स्ट्रीम में. ये उसका पहला काम है. दूसरा काम क्या है पैनक्रियास का, इंसुलिन का? जब ये जो मसल सेल्स में हमारा जो ये ग्लूकोज जो मसल सेल्स में जाने की कोशिश करता है, मसल सेल्स में दरवाजे होते हैं. ठीक है, ये दरवाजे जब तक खुलेंगे नहीं, ये ग्लूकोज उसके अंदर नहीं जा सकता है. आप इंसुलिन को एक चाबी की तरह समझिए. इंसुलिन इज अ चाबी जो हमारे मसल सेल्स के दरवाजे को खोलेगा, और जो खून में से जो ग्लूकोज है वो हमारे मसल सेल्स के अंदर जाएगा ताकि हमारे मसल्स को और हमको ताकत मिले और हम वी लिव नॉर्मल लाइव्स. दिस इज व्हाट हैपेंस इन द बॉडी. ओके, ये चार्ट हमको वही समझा रहा है. अब इसी को हम इस तरह से देखते हैं. अब देखिए आप, जो ग्राफ के नीचे के साइड पे है ये हमारा मसल सेल है, और ये बीच में जो छोटे छोटे ट्रायंगुलर चीजें दिख रही है वो इसके दरवाजे हैं. इंसुलिन क्या करता है, इस दरवाजे को खोल के हमारा जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको मसल सेल्स के अंदर ढकेलता है. दिस इज द सिंपल चार्ट और डायग्राम विच विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इंसुलिन डज. ठीक है ना. तो ये चार्ट बहुत पॉपुलर है, आई कैन शेयर इट ऑल्सो विथ यू लेटर ऑन. अब जिनको नॉर्मल ग्लूकोज जिनको डायबिटीज नहीं है, उनका ब्लड में ये जो व्हाइट जो दाने दिख रहे हैं आपको, दिस इज शुगर, ब्लड शुगर. इतना ही ब्लड शुगर है उनके, जिनको डायबिटीज नहीं है उनके ब्लड स्ट्रीम में. लेकिन जिनको डायबिटीज है, ये उनका ब्लड स्ट्रीम ऐसे दिखेगा, क्योंकि ये जो चाबी है, इंसुलिन जो चाबी का काम कर रहा है, ये ठीक से नहीं होता इन लोगों के बॉडी में, हमारे बॉडी में, क्योंकि ये चाबी खुलता नहीं. तो ये चाबी को खोलने के लिए हम दवाइयां खाते हैं. ठीक है ना. दिस इज एज सिंपल एज दैट. तो इंसुलिन दो काम करता है. एक तो वो खाना जैसे ही हमारे अंदर जाता है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ता है ब्लड में, वो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाज में से. और दूसरा वो क्या काम करता है, ये मसल सेल्स के दरवाजे खोल के हमारे ब्लड में से ये ग्लूकोज को मसल सेल्स के अंदर ढकेलता है, ताकि मसल्स को जो एनर्जी चाहिए वो भी मिले, और जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो भी अपने आप एक नॉर्मल लेवल पे आ जाए, ज्यादा नहीं रहे. ठीक है ना. तो ये होता है पैनक्रियाज और इंसुलिन. अब बहुत लोग इसकी बात करते हैं कि भैया टाइप 1 डायबिटीज क्या है, टाइप 2 डायबिटीज क्या है. अब पैनक्रियाज में दो तरह के सेल्स होते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स इन पैनक्रियाज. वन इज कॉल्ड द अल्फा सेल एंड वन इज कॉल्ड द बीटा सेल. ठीक है ना. बीटा सेल्स पैनक्रियाज के इंसुलिन प्रोड्यूस करता है. ठीक है ना. जो टाइप 1 है, जिनका मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइप 1 के लोगों को स्टार्टिंग से इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनके जो बीटा सेल्स है पैनक्रियाज में, वो इंसुलिन बना ही नहीं पाते हैं.
वो बीटा सेल्स खत्म हो गए इन लोगों के बॉडी में, एंड इट इज नॉट देयर फॉल्ट। ये जेनेटिक हो सकता है, पैनक्रियास का कुछ प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है, कुछ लोग जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, बाकी किसी बीमारी के लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं, वो सब हमारे पैनक्रियास के ऊपर असर कर सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पैनक्रिया के अंदर जो बीटा सेल्स है वो मर जाते हैं। अब जो बीटा सेल्स ही नहीं रहे तो इंसुलिन बॉडी में प्रोड्यूस कैसे होगा, इसलिए नहीं होता है। और जो टाइप 1 डायबिटीज है वो लोग स्टार्टिंग से इंजेक्शन लेते हैं। पहले के जमाने में 20-30 साल पहले आप देखोगे तो बच्चों में होता था टाइप 1 डायबिटीज, 10 साल के उम्र में, 12 साल के उम्र में टाइप 1 डिटेक्ट होता था, एंड द चाइल्ड यूज्ड टू बी लूजिंग वेट, नॉट वेरी हंग्री, उनको गर्मी लगना। तो पहले तो माँ बाप समझते हैं कि बच्चा बदमाशी कर रहा है, बाद में जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं तब उनको समझ में आता है कि बच्चे को एक्चुअली टाइप 1 है। दूसरा है टाइप 2, ये मैंने आप लोगों को अभी समझाया, रिपीटेड। टाइप 2 में बीटा सेल्स होते हैं बॉडी में, पैनक्रियाज में, लेकिन जितने नॉर्मल लोगों में इंसुलिन प्रोड्यूस होने की क्षमता है, हमारे बीटा सेल्स में इतनी इंसुलिन प्रोड्यूस होने की क्षमता नहीं है। आर बीटा सेल्स आर नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन टू कीप आवर ब्लड शुगर लेवल्स अंडर कंट्रोल, इसलिए हमको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो डिफरेंस इन टाइप 1 एंड टाइप 2 इज, टाइप 1 में बीटा सेल्स में से इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता है, इसीलिए ये लोग स्टार्टिंग से इंसुलिन में रहते हैं। टाइप 2 में हमारे बीटा सेल्स हैं लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहे, और ये मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज जाना चाहिए ना, वो ठीक से जाता नहीं है। तो इन दोनों चीजों के लिए हम दवाई लेते हैं, हमको डायरेक्टली इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है। देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन दैट कैन टेक केयर ऑफ टाइप 2 पेशेंट्स। आप लोग को, am I going fast? I mean, is it clear? Can somebody respond, please? Is it okay? Very clear, doctor. Go ahead. Okay, thank you. Okay, so now this classic, और क्या करता है पैनक्रियाज, दिस वंडर ऑर्गन कॉल्ड पैनक्रियाज, जिसको हम अपने चेहरे को देखते हैं, नाक सही है, आंख सही है, चेहरा कैसा दिख रहा है, प्लास्टिक सर्जरी कर लें, ये कर लें, लेकिन अंदर जाके हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे पैनक्रियाज इतना वंडरफुल ऑर्गन भगवान ने दिया है और हम उसको बचा के कैसे रखें। तो पैनक्रियाज करता क्या है? पैनक्रियाज इज डूइंग अ बैलेंसिंग एक्ट, ठीक है ना। ये बैलेंस का साइन मैंने क्यों बनाया है मैं आपको समझाती हूँ। मैंने बीटा सेल्स तो आपको समझा दिया, नीचे की तरफ जो है, ठीक है ना। बीटा सेल्स पैनक्रियाज में है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और इंसुलिन जो है ब्लड शुगर लेवल्स को नीचे लेके आता है जब वो बहुत हाई हो जाते हैं। पैनक्रियाज में अल्फा सेल्स भी हैं जो इंसुलिन का ऑपोजिट एक हार्मोन है, ऊपर ग्लूकागॉन करके लिखा है मैंने, वो उसको प्रोड्यूस करता है। जब बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बहुत नीचे हो जाता है तब अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स अगर 70 के नीचे चले गए, 70, 60, 50, तो हम लोग कोमा में भी जा सकते हैं। वी नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ blood sugar in our sugar in our glucose in our bloodstream to be functioning properly. We have to function, right? Day to day काम होने चाहिए. We cannot get very tired. We have to be working for 10-12 hours, then we sleep for 8 hours. So these things have to continue normally. तो ये जो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स है, ये दे वर्क इन टैंडम, दोनों का काम उल्टा है एक दूसरे से, लेकिन ये दोनों जब बराबर काम करते हैं तब हमारे ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रहते हैं। इंसुलिन काम करता है ब्लड शुगर को नीचे लाने का, और ग्लूकागॉन काम करता है इंसुलिन जो ब्लड शुगर है उसके लेवल को थोड़ा बढ़ाने का, ताकि हम एक्टिव और हमारे में काफी एनर्जी रहे, एंड वी आर एक्टिव थ्रू आउट द डे, वी डोंट हैव फटीग, वी आर नॉट टायर्ड। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ योर डायबिटिक, बट आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जब ब्लड शुगर लेवल 70 के नीचे चले जाते हैं, एंड दिस इज वेरी डेंजरस फॉर ओल्डर पीपल, बिकॉज बहुत नीचे जब शुगर लेवल्स हो जाते हैं तो इंसान कोमा में भी जा सकता है, इट कैन ऑल्सो बी फेटल। इसीलिए ओल्डर पीपल में ये कहा जाता है कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को थोड़ा ऊपर ही रखो, क्योंकि जब समझिए एक ओल्डर पर्सन घर में अकेले हैं, उनके घर में जो लोग हैं वो काम पे गए हैं, दिस पर्सन इज अलोन एट होम, उनका 180-200 भी शुगर होगा ना तो ठीक है, बिकॉज दैट पर्सन विल बी एक्टिव एंड दैट पर्सन विल हैव एनर्जी। बट जब ये ओल्ड एज में 70-80 में ब्लड शुगर लेवल बहुत नीचे हो जाता है तो अनकॉन्शियस होने की चांसेस हैं, और दैट पर्सन कैन गो इनटू कोमा, इट कैन बिकम डेंजरस। इसीलिए स्लाइटली ओल्डर पेशेंट्स जिनको बहुत टाइम से डायबिटीज है, उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आप अपना शुगर लेवल थोड़ा हाई रखो। ओके, सो दैट इज व्हाट योर पैनक्रियाज डू, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। टाइप 1 मैंने आपको समझा दिया, टाइप 2 समझा दिया। अब जेस्टेशनल डायबिटीज ये होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे आ सकता है। व्हेन अ लेडी इज प्रेग्नेंट,
there is a possibility that she has high blood sugar levels than normal. Gestational diabetes बहुत केसेस में प्रेगनेंसी के बाद खत्म हो जाती है, बट जिनको एक बार जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ है उनको टाइप 2 कभी भी होने के चांसेस हैं. तो जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी के टाइम पे जिनको डायबिटीज हुआ है और वो चला गया है, उनको 2 महीने बाद, 10 महीने बाद, 2 साल बाद, 20 साल बाद कभी भी डायबिटीज हो सकता है. तो जिनको एक बार डायबिटीज प्रेगनेंसी के टाइम पे हो गया, दे हैव टू बी केयरफुल थ्रू आउट देयर लाइफ. ओके. और जेस्टेशनल डायबिटीज में डॉक्टर्स बहुत कोशिश करते हैं कि डायबिटीज कंट्रोल में रहे. टेस्ट बहुत रेगुलरली होते हैं ताकि बच्चे पे बुरा असर नहीं पड़े. So these are the 3 types of diabetes. That there are many more types of diabetes, but 80% of diabetics have type 2. 90% people diabetics have type 2, and 5 to 10% people have type 1. और बाकी 1-2% और बहुत तरह के डायबिटीज हैं जो यहाँ पे मेंशन करने की अभी जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट पॉपुलेशन इज वेरी लेस. ओके, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? मैंने जो आपको समझाया वो चाबी वाली बात कि इंसुलिन इज द की दैट opens the door of the muscle cells for the glucose to move from the bloodstream into the muscle. ये जब हमारे में नहीं होता है, the muscles cannot absorb that glucose. It is called insulin resistance. The muscle is becoming resistant to the action that insulin can take on it. So insulin does not work on these muscles, and the muscle का जो door है doesn't open, और उसमें ग्लूकोज अंदर जाता नहीं है, ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में ही रहता है. उसके कारण ब्लड शुगर लेवल हमारे हाई दिखते हैं. इसके लिए भी दवाइयां हैं. हर छोटे प्रॉब्लम के लिए मेडिकल साइंस ब्यूटीफुली हैज अ मेडिसिन. सो दैट्स व्हाई पीपल हु हैव डायबिटीज, इफ दे टेक देयर मेडिकेशन ऑन टाइम एंड मैनेज देयर फूड प्रॉपर्ली, दे कैन live a very good life. Probably 10-20 years later they may be very healthy also, except for this small thing. Okay, now this all of you, आपको लग रहा है मेरा मेडिकल प्रेजेंटेशन है, तो आई एम गोइंग टू मेक इट लिटिल मोर मेडिकल, क्योंकि ये जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ ये ऑमिनस ऑक्टेट है, आपको लाइफ में किसी ने नहीं बताया होगा. ओके, हमको जो डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं वो इसके बेसिस पे ट्रीट करते हैं. ठीक है ना. अब ऑमिनस ऑक्टेट क्या है? ऑमिनस मतलब डेंजरस, ऑक्टेट मतलब 8. देयर आर 8 थिंग्स दैट हैपन इन आवर बॉडी व्हिच इज नॉट इन आवर कंट्रोल. ओके. ना हमको लगता है ना डायबिटीज क्यों हुआ किसी को, उसके पेरेंट्स को था या उन्होंने बहुत खराब लाइफस्टाइल लीड कर रहे, कुछ भी खाते हैं, कभी भी सोते हैं, दे आर ओवरवेट, दे डोंट वॉक, दे स्मोक, दे ड्रिंक, दे ईट टू मच नॉनवेज, जो भी हो. ये सब तो नोन रीजंस हैं. जिनको ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, जिनको ब्लड प्रेशर है, उनको डायबिटीज होने का चांस ज्यादा है. ये हमारे कंट्रोल में है. ये जो अभी जो रीजंस मैंने बताया, खाने के ऊपर से, स्मोकिंग के ऊपर से, ये हमारे कंट्रोल में है और ये आदतें हम बदल सकते हैं. अब 8 चीजें ऐसी हैं जो हमको किसी ने आज तक बताया नहीं, लेकिन आप ये समझ जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप, कुछ लोग 4 दवाई क्यों खाते हो आप, कुछ लोगों को 2 ही दवाई क्यों है, कुछ लोगों को इंसुलिन पे क्यों जाना पड़ता है. सो देयर आर दीज 8 रीजंस इन आवर बॉडी व्हिच लीड टू which are out of our control. ये हमारे बॉडी में डिफेक्ट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू शुगर मेटाबॉलिज्म. और ये ऑमिनस ऑक्टेट तो इसको पता करके 15-20 साल हो गए हैं. अभी ये 8 रीजंस 15 हुए हैं. दे आर कॉल्ड द फॉर्मेटिव 15. बट टुडे इन टुडेज प्रेजेंटेशन आई एम गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट द ऑमिनस ऑक्टेट, बिकॉज the other 15 we can do some other time, because other 8 we can do some other time, because the reasons are endless. But these are the main 8 reasons. And जो भी हम दवाई खाते हैं ना, the medicines are also based on the basis of these 8 defects. So medical science इतना आगे चला गया है कि जितने भी डिफेक्ट्स हम बॉडी में देख रहे हैं उसके लिए एक दवाई बन गई है. Okay, I'll quickly take you through it. So this is it. This is the ominous octet. Okay. One is तो ये जो 8 जगह है, क्या क्या जगह है? ब्रेन में हो सकता है प्रॉब्लम, मसल्स में हो सकता है, मसल का मैंने आपको अभी समझाया, लिवर में प्रॉब्लम हो सकता है, गट मतलब जो हमारा इंटेस्टाइन है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, फैट सेल्स में प्रॉब्लम हो सकता है, पैनक्रियास तो हमने देखा है, और किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकता है. आपको मैं क्विकली बताती हूँ क्या प्रॉब्लम्स हो. पैनक्रियास तो मैंने आपको बता दिया. एक तो यहाँ पे कम इंसुलिन सेक्रेट होगा तो हमारे शुगर लेवल्स बढ़ेंगे, और जो अल्फा सेल्स है जो ग्लूकागॉन सेक्रेट करते हैं, जो इंसुलिन का उल्टा काम करता है, अगर हमने हमारे पैनक्रियास ने इंसुलिन के बदले ज्यादा ग्लूकागॉन प्रोड्यूस कर दिया तो ब्लड शुगर कम होने के बदले बढ़ता है. सो दीज आर द फर्स्ट 2 रीजंस, और वो दोनों पैनक्रियास से रिलेटेड है. सेकेंड रीजन इज इंक्रेटिन इफेक्ट. जब हम खाना खाते हैं ना, तो जो हमारा खाना है उसमें से जो ग्लूकोज है वो हमारे बॉडी में बहुत स्लोली रिलीज होना चाहिए. ठीक है, नॉर्मल लोगों में जिनको डायबिटीज नहीं है वो स्लोली रिलीज होता है,
और वो स्लो रिलीज के कारण शुगर ज्यादा बढ़ता नहीं है, आराम से बढ़ता है और फिर नीचे आ जाता है। डायबिटिक्स में ये जो इंक्रेटिन करके हार्मोन है इंटेस्टाइन में, वो बराबर काम नहीं करता है। इसके कारण हम जैसे ही खाना खाते हैं वो एकदम से रिलीज हो जाता है, जल्दी से वो खाना ग्लूकोज में बदल जाता है, बहुत जल्दी, और इसके कारण हमारा शुगर लेवल बहुत हाई चला जाता है। सो दिस हैपेंस इन द इंटेस्टाइन, ठीक है ना। द थर्ड इज योर फैट सेल्स, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि फैट सेल्स रिलीज मोर फ्री फैटीज, जो लिपिड है, जो हमारे फैट सेल्स है, फैटी लिवर हो जाता है, जो लिवर के जो सेल्स हैं या मसल पैनक्रियास, इसमें अगर ज्यादा फैट जमा हो जाए ना तो भी इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। जैसे मसल सेल्स में मैंने आपको बताया था, वैसे ही फैट सेल्स में भी यही प्रॉब्लम हो सकती है। इट इज नॉट द फैट दैट वी सी, ये जो हमारे अंदर के जो सेल्स है ना, उसमें जो ज्यादा फैट जमा हो जाए, इसके कारण भी लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। उसके कारण वो अब्सॉर्ब नहीं होता है ग्लूकोज बॉडी के अंदर, और वो ब्लड में ही रहता है। सो दिस इज द थर्ड रीजन। फोर्थ रीजन इज किडनी। किडनीज का हमारा ये काम है, यू नो वी हैव 2 किडनीज, राइट। किडनी का हमारा एक काम है कि जो शुगर ग्लूकोज जो बॉडी के लिए चाहिए ना, किडनी सारा नहीं निकालती है, थोड़ा सा रखती है किडनी, क्योंकि हमको वो शुगर चाहिए बॉडी में, ग्लूकोज टू बी एक्टिव। लाइक ग्लूकोज क्या है, हमारा एनर्जी का मेन सोर्स है। तो ऑल ग्लूकोज इज नॉट बैड। इफ यू हैव द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी, इट इज वेरी गुड, राइट। लेकिन क्या होता है डायबिटिक्स में, किडनी भी धोखा दे देती है हमको। किडनी क्या करती है, जितना शुगर अब्सॉर्ब करना चाहिए वापस, उससे ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेती है। तो वापस वो एब्सॉर्ब करके क्या करती है, ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती है किडनी। तो फिर से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको हमारे शरीर के जो 5, 6, 7 हिस्से हैं, वो सब मिलके हमको धोखा दे रहे हैं। लेकिन हर डायबिटिक में हर चीज ठीक से काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। मेरे में शायद किडनी का हो सकता है, किसी और में शायद लिवर का हो सकता है, या मेरे में 2 चीजें हो ऐसी जो ठीक से काम नहीं कर रही हो। सो ऑल दीज 8 डिफेक्ट्स नीड नॉट बी इन वन पर्सन. One single diabetic may see 1 or 2 or 3 or some of these defects, not necessarily all of them. Okay. The next reason is ग्लूकोज अपटेक, जो मैंने आपको बताया था, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस करके बताया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्रीज्ड ग्लूकोज अपटेक। मसल सेल्स को जितना ग्लूकोज खींचना चाहिए ब्लड में से, वो उतना नहीं खींच पाता है। अपटेक मीन्स खींच नहीं पाता है उतना, और ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है। उसके कारण हमारे ब्लड शुगर लेवल्स ज्यादा दिखते हैं। ओके, देन ब्रेन में से ना, हम जब खाना खाते हैं, ठीक है ना, हम लोग में से बहुत जन है जो खाते हैं और हमको थोड़े टाइम में ऐसा लगता है हमारा पेट भर गया, which is very good because something is working fine between our brain and our stomach. जो आप लोग ने देखा होगा, कुछ लोग ना खाते हैं और खाते हैं और खाते हैं और खाते ही रहते हैं, और आप उनको 1 घंटे के बाद और परोसो तो वो और खाते हैं। द पॉइंट इज दिस पीपल आर नॉट ग्रीडी, और यू नो द पॉइंट इज, इन लोगों ने ऐसा कुछ गलत किया है या ऐसा कुछ खाया है बहुत टाइम तक, जिसके कारण ब्रेन से लेके पेट तक का जो सिग्नल है ना, वो खराब हो। ब्रेन ये सिग्नल ही नहीं दे पा रहा है उनके पेट को कि भाई पेट भर गया, अब रोक दो, डोंट ईट मोर। सो these are all signals, you know. We have signals when we have pain, we understand, no, we have pain. It is because the brain is transmitting a certain signal. Similarly, in this case, the brain is not able to transmit that signal to the stomach saying that कि आप भर गए हो, अब बस करो। Okay, it is called leptin resistance. I will tackle it a little more, you know, in detail a little later. And then increased hepatic glucose production. Hepatic means liver. लिवर में क्या होता है, ये मैंने पैनक्रियाज आपको बोला था, अल्फा सेल्स बोला था, जो ग्लूकागॉन ज्यादा प्रोड्यूस कर जाता है। डायबिटीज का एक डिफेक्ट है। तब ग्लूकागॉन जब ज्यादा प्रोड्यूस होता है, वो लिवर को छेड़ता है ग्लूकागॉन, और लिवर को बोलता है कि आप ग्लूकोज प्रोड्यूस करो। तो जब हमारे बॉडी में शुगर ऑलरेडी हाई है ब्लड में, वो ग्लूकोज, फिर उसके बावजूद भी लिवर आपके बॉडी में और प्रोड्यूस कर रहा है ग्लूकोज, या वो लिवर स्टोर भी करता है ग्लूकोज और लिवर प्रोड्यूस भी कर सकता है, दोनों करता है लिवर। ग्लूकागॉन के कारण क्या होता है, ये गलत सिग्नलिंग हो जाती है लिवर को, और लिवर क्या करता है, जरूरत ना होने पर भी इट रिलीजेस मोर ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और फिर से हमारा ब्लड शुगर हाई हो जाता है। सो These are the 8 reasons. I'm sure आप में से किसी ने भी ये इसके पहले सुना नहीं होगा। हमको सिर्फ 2 चीजें बताई जाती है, आपका इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है बॉडी में, और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये जो 8 रीजंस हैं, ये हमको कोई नहीं बताता है। बिकॉज वंस यू नो दिस 8 रीजंस ना, आप लोग दवाई लेने को हिचकिचाएंगे नहीं, बिकॉज
ये डिफेक्ट हमारे में आ गए हैं और इसको कोई नहीं बचा सकता. वी हैव टू टेक मेडिकेशन टू एंश्योर दैट वी कॉम्पनसेट फॉर दिस डिफेक्ट. और जब लोग दवाई टाइम पे नहीं खाते हैं ना, तो आप सोचो अभी कि कितनी बड़ी गलती वो लोग करते हैं. हमको कभी कभी लगता है डॉक्टर्स इतनी दवाई क्यों दे रहे हैं, क्यों दे भाई. अभी हमारे शरीर में अगर ये 8 में से 4 डिफेक्ट है तो डॉक्टर क्या करेगा? he has to try to protect you, and that sometimes turns into more medication, you know. So that is what really happens. So what happens? So like I said, this omnis octet, ye jo 8 defects hain, they have now become 15, formative 15. Okay, so for example, pregnancy is one more classic reason for diabetes. Vitamin D deficiency can be a reason for insulin resistance. Vitamin B12 deficiency can become a reason for type 2 diabetes. So okay, I'm not getting into those details, बहुत overdose हो जाएगा. So the doctor, so आप इस स्लाइड को डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए. डॉक्टर क्या कर रहा है? वो डॉक्टर को पता है कि इसमें से 8 या 14 में से आपके बॉडी में 3-4 डिफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें से कौन से डिफेक्ट्स बॉडी में वो डॉक्टर को नहीं पता चलेगा. डॉक्टर तभी करते हैं ट्रायल एंड एरर. आपको बेसिक दवाई पहले देते हैं विच इज मेटफॉर्मिन. अगर उससे आपके शुगर लेवल्स कम हो गए तो आपको वो मेटफॉर्मिन में ही रखेंगे जिंदगी भर, बिकॉज इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड. अगर मेटफॉर्मिन लेने के बावजूद आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं आएंगे, देन द डॉक्टर विल स्टार्ट लुकिंग एट कि क्या इनमें किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है. किडनी मतलब क्लासिक किडनी प्रॉब्लम नहीं, इज द किडनी अब्सॉर्बिंग मोर शुगर बैक, या इस पेशेंट में लिवर ज्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है क्या. तो डॉक्टर देन स्टार्ट्स थिंकिंग एंड दे स्टार्ट गिविंग यू मेडिसिन्स टू सी विच इज वर्किंग इन योर बॉडी. एंड वंस दे सी दैट दिस पर्टिकुलर मेडिसिन और कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन्स हैव वर्कड फॉर यू, you will settle with that, you will stay with that for some time. और इंसुलिन आपको पता है, जिनमें मेडिसिन काम नहीं करते हैं उनको इंसुलिन लेना ही पड़ता है. द पॉइंट आई वांट टू मेक ऑन इंसुलिन, लोग इंसुलिन से भी दूर भागते हैं टेस्ट के जैसे, बट इंसुलिन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर डायबिटीज. इट्स नॉट अ मेडिसिन, यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? इंसुलिन इज द हार्मोन जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वो हम बाहर से ले रहे हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है. इसमें ऐसा मतलब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना, मैं इंसुलिन में हूँ, आई एम वीक, लोगों को बताना नहीं चाहिए मुझे डायबिटीज है. भैया, माय सिंपल पॉइंट इज, आई एम सॉरी टू से दिस टू अ लार्ज ग्रुप, हमको डायबिटीज है, एड्स नहीं है. आपको ये दुनिया से छुपाने की जरूरत नहीं है कि आपको डायबिटीज है. आप जितना लोगों को बताओगे आपको डायबिटीज है, आपको उतना सोसाइटी से हेल्प मिलेगा. आप सोचिए, एक बंदा ऑफिस में काम करता है, इज इन सेल्स, ट्रैवलिंग 10 days a month, okay, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन कोरोना डे. अपने सारे कलीग से उसने छुपाया है कि मुझे डायबिटीज है. अब वो लोग उसको बर्थडे पे केक खिला रहे हैं, पार्टी पे लेके जाए, उसको सब कुछ खाना पड़ेगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट उसको पता है कि ये सब मेरे लिए खराब है. उससे अच्छा आप अपने कलीग्स को बता दो कि आपको डायबिटीज है, यू नॉट सेफ. व्हाट इज द हार्म? ऐसे बहुत लोग हैं, एंड आई एम सॉरी टू से दिस, men hide more than women that they have diabetes. And I have a huge sample size to prove it. उनको इतना रेजिस्टेंस होता है, पहले तो खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते मेन कि उनको डायबिटीज है, बहुत टाइम लगता है उनको, यू नो, कंपेयर्ड टू वुमेन. वंस दे एक्सेप्ट, दुनिया को नहीं बताते. वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स in the US, he is the person who has guided me on diabetes on lot of issues. That day I was talking to him, he is telling me, गीता ये फेसबुक पे गलती से भी मत डालना, मैंने किसी को बताया नहीं है मुझे डायबिटीज. एंड आई वाज शॉक्ड. अच्छा, आपको इतना नॉलेज है, आपको सब पता है, एंड इट इज नॉट कि हमारे किसी कारण हमने ऐसा कुछ गलत इतना कर दिया है कि जिसके कारण हमको ये बीमारी हुई है ना. इट इज डायबिटीज, नो. सो व्हाई शुड यू बी सो स्कैर्ड? सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट, यू नो, diabetes is no longer just a medical problem. It has become a psychological issue in the society, and people hide it, and it becomes a huge problem for the family. Okay, more on that later. वो एक पूरा टॉपिक ही है, तो I will stop at that now. So what are the risk factors? ये सब आप लोगों को पता है, ये सब डॉक्टर्स ने भी बताया होगा. So if you are overweight, if you lead an inactive lifestyle, if you are above 40, आज तक तो above 40 वाला फंडा रहा ही नहीं, आपको 20 साल के बाद से चेक करना है. If you have a parent or brother, sister, or, you know, maternal aunt, uncle, or, you know, anybody from father's side also, if he's or she is diabetic, you better check. If you have gestational diabetes during pregnancy, अगर आपका fasting sugar 125 तक आ रहा है तो आप चेक करो. आपके अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बराबर नहीं है, या आपको ब्लड प्रेशर है, तो आपको डायबिटीज हो सकता है. So you have to make lifestyle changes. So these are risk factors. Some more risk factors which are not in your control are कि आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है, तो ये आपकी गलती नहीं है. If you are an Asian, okay, आपके पैनक्रियास को कुछ एक्सीडेंट के कारण कुछ इंजरी हो गई, या कोई इन्फेक्शन हो गई, या आपको कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके कारण आपके पैनक्रियास में कुछ इफेक्ट हो गया, एज के कारण, फिजिकल स्ट्रेस, और, यू नो, सम सर्जरी और इलनेस. सो दीज आर नॉट इन योर कंट्रोल.
clearly what is in our control we know. If your lipid profiles are not okay, your cholesterol, HDL, LDL, triglycerides, if there are people who smoke heavily, heavy alcohol consumption, being overweight, being lazy, not working out at all, some substance abuses also, use of certain medications, or people who have genuine need for steroids, they may also develop their diabetes. Stress is one of the biggest reasons in today's generation, more because of work from home. And this last year has really been very stressful on people who have been working from home. It has taken a toll on them. And I'm sure a lot of people would have got detected last year, and unfortunately people don't check. Irregular sleeping also leads to diabetes, and bad and irregular food. So those were the risk factors. आपको ये सब है तो आपको you have to check, आपको ख्याल रखना पड़ेगा. अगर आपको डायबिटीज हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा विदाउट चेकिंग? सो देयर आर सर्टेन सिम्टम्स. फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है तो ब्लड बॉडी क्या कर रही है, उस ग्लूकोज को बॉडी के बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, इसलिए आपको बार बार बाथरूम जाने का मन करता है. दैट द बॉडी इज पुशिंग द ग्लूकोज आउट. दैट इज व्हाई यू यूरिनेट मोर. बिकॉज यू यूरिनेट मोर, आपका ग्लूकोज निकल जाता है बॉडी से, यू लूज वेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू ऑल्सो फील मोर थर्स्टी. पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेरिया, दिस थ्री आर कॉल्ड दैट. उसके अलावा बिकॉज आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, बार बार आप यूरिनेट कर रहे हो, यू फील टायर्ड. सम पीपल हैव उल्टा सिम्टम विच इज वेट गेन, विच इज रेयर बट होता है. स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, आपको अगर चोट लग गई तो आपका चोट जल्दी भरेगा नहीं, विच मीन्स आपका ब्लड शुगर ज्यादा है. ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ फटीग यू स्लीप मोर. ओके. एंड कुछ लोगों को धुंधला दिखने लगता है, विच दिस इज वेरी क्लासिक सिम्टम ऑफ डायबिटीज. ओके, ऑफ ऑनसेट ऑफ डायबिटीज. ये सब हो किसी को तो उनको तुरंत चेक करना चाहिए. इसके अलावा लाइक आई सेड, फीलिंग वीक है, टायर्ड है, हाथों में ये क्या बोलते हैं, टिंगलिंग, आई डोंट नो व्हाट टू से इन हिंदी, नमनेस या सुन हो जाता है हाथे, और टिंगलिंग सेंसेशंस हो जाते हैं हाथों में, विच ऑल्सो इंडिकेट्स टाइप 2. ड्राई इची स्किन, कुछ लोगों को स्किन ड्राई, कुछ लोगों को आप देखोगे स्किन टैग्स बोलते हैं, ये गले के इधर, आपके पेट के इधर आपको ना एकदम डार्क स्किन हो जाता है आपका, विच मीन्स आपको डायबिटीज है. ओके. एंड अ लॉट ऑफ विमेन ऑल्सो हैव यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन, ये भी होता है. ये होने पर भी इट इज बेटर टू चेक योर HbA1c. ओके. सो व्हाट आर द डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस? सो डायबिटीज अगर कंट्रोल में नहीं रखा ना तो इट इज अ वेरी प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर. ओके. ये बढ़ता ही जाएगा. अगर आपने कंट्रोल में रखा तो आप बहुत हेल्दी हो सकते हो, लेकिन आपने कंट्रोल में नहीं रखा तो इट कैन बी अ डिजास्टर ऑल्सो. सो लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू द रेंज. ये HbA1c में बोल रही हूँ ना, ये एक टेस्ट है जो आपका 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर दिखाता है. आई एम नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ HbA1c, बट व्हाट इज इट? फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल हम करते हैं तो कभी भी करते हैं ना, वो एक टाइम का रीडिंग है. ये जो है ये आपका 3 मंथ्स का, 90 डेज का एवरेज रीडिंग. ठीक है. अगर आप 5.7 आप अगर 5.7 to 6.4 हो, ठीक है, तो आप प्री डायबिटिक हो. अगर आप 5.7 के नीचे हो तो आपको डायबिटीज नहीं है. ओके. और अगर आप 6.4 के ऊपर हो तो आपको डायबिटीज हो गया है. तो 5.7 to 6.4 is pre-diabetes, borderline diabetes, IGT, call it what you may, and above 6.4 is diabetic. Okay? और जब लोग ख्याल नहीं करते हैं तो ये होता है. ठीक है ना. जब हम प्री डायबिटीज स्टेज में रहते हैं, सो इसी स्टेज पे 5.7 से 6.4 पे अगर आपको बहुत दिनों से प्री डायबिटीज है, 1-2 साल से, तभी भी आपके बॉडी में डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. इसीलिए कुछ लोगों को धुंधला दिखता है. अगर आपने फिर से ख्याल नहीं किया तो यू कैन गो टू एन HbA1c ऑफ अप टू 9. यहाँ पे आपके ऑलरेडी नर्वस सिस्टम्स, जो न्यूरोपैथी बोलते हैं, जहाँ पे आपके नर्व एंड्स खराब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, इसके कारण अजीब तरह की बीमारियां हो जाती हैं. अगर आपने फिर भी नहीं ख्याल किया तो इट कैन डायरेक्टली लीड टू ब्लाइंडनेस, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक. और उसके बाद आई डोंट थिंक आई वांट टू एक्सप्लेन इट. देयर आर पीपल हु डाई बिकॉज ऑफ डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज दे आर जस्ट नॉट बॉदर्ड. और आपने सर और मैम, यू लुक एट डायबिटीज एज एन इलास्टिक. आपने खींचा फिर वो शेप में आ गया, आपने फिर खींचा वो फिर शेप में आ गया, आपने और थोड़ा खींचा वो फिर भी शेप में, ऐसे आपने 2-3 साल खींचा, वो रबर बैंड शेप में आते ही जा रहा है. लेकिन 3 साल और 1 दिन पे वो रबर बैंड डिसाइड करता है कि नाउ आई कैन नॉट कम बैक इनटू शेप, अभी तो मैं छूट गया. ये छूटना उसको बोलते हैं कि बॉडी आपका बहुत हद तक बॉडी संभाल के लेती है कि चलो, आई मीन it's a wonderful organ, our body, and if there is something called God, yes,
then God is giving us many chances कि अभी ठीक हो जाओ, अभी ठीक हो जाओ, अभी ठीक हो जाओ. बट वो रबर बैंड की तरह हम लोग छूटते जाते और एक हद के बाद बॉडी गॉड जो भी है वो हमको बोल देता है कि भाई अभी नाउ यू आर ऑन योर ओन, अभी आपको किडनी ट्रांसप्लांट मिल गया तो आप जिंदा हो, नहीं तो आप डायलिसिस चालू कर दो. एंड डायलिसिस में आपको पता है पहले 2 दिन हफ्ते में, फिर 3 दिन हफ्ते में, जिंदगी सालों साल आप हॉस्पिटल में निकाल दोगे. एंड आई डोंट वांट टू इवन कमेंट ऑन द अमाउंट ऑफ मनी दैट gets spent on dialysis if you don't have insurance, blah 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 blah. So that is another topic. So I will quickly skip these slides because I think I have a lot to cover. So I will go to this section. So वही है, complications ही है लेकिन short में cover किया है मैंने. So आँख, क्या क्या complications, पूरी body affect हो सकती है diabetes से. So let's start with the uppermost part of the body. Higher risk of retinopathy, cataract and glaucoma. Retinopathy अगर टाइम पे करेक्ट नहीं किया तो इंसान अंधा हो सकता है. यू कैन गो ब्लाइंड. ब्रेन, अगर आपका ब्लड शुगर ज्यादा रहा यू कैन गेट अ स्ट्रोक, आपका मेमोरी लॉस हो सकता है. एंड पीपल हु हैव डायबिटीज हैव द प्रोपेंसिटी ऑफ डिप्रेशन 3 times more than people who are non diabetic. ईयर्स, यू कैन लूज योर हियरिंग बिकॉज ऑफ द जो नर्व्स हैं जो आप ब्लड वेसल्स को कान में कनेक्ट करते हैं वो अगर सड़ गए is the Hindi word. Your blood vessels can rot and you will probably have hearing issues. Teeth, you will have gum problems. आपके सारे दांत खराब हो सकते हैं. Stomach, intestine में इसको बोलते हैं gastroparesis. This is part of autonomic neuropathy. आपके जो, आपको पता है ना, हम जब खाना खाते हैं तो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है थोड़ी देर, फिर वहां पे काम होने के बाद स्टमक अपने आप टर्न होके उसको लार्ज इंटेस्टाइन में डालता है. ये सब अपने आप होता है बॉडी में. ऑटोनॉमस मतलब ऑटोमेटिकली ये नर्व्स करते हैं. वो पूरा सिस्टम खराब हो सकता है बॉडी में. और जो हम खाना खाएंगे ना इधर ही रहेगा वो. आपको या तो बहुत हार्ट ये एसिडिटी होगा, हार्ट बर्न होगा, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, इसके कारण आपको नोजिया होगा, और यू विल हैव एक्सट्रीम डायरिया. कुछ लोगों का नर्वस सिस्टम खराब होने के कारण दे हैव एक्सट्रीम डायरिया और एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशन. ओके, सो ऑल दीज आर नर्व एंड्स. हार्ट प्रॉब्लम तो हमको पता ही है डायबिटीज के कारण. द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, the most common complication of diabetes death is because of heart attack. Liver, fatty liver. Okay, I have a house in Chembur where somebody lives. So one day I was talking to that gentleman and the Gujarati. So I told him, sir, इतना मीठा मत खाओ. तो 2 years back he told me कि हम तो हर खाने के बाद हमको मीठा चाहिए. भले हम खाने में 1 किलो चावल खाएं फिर भी हमको खाने के बाद बासुंदी चाहिए. Today he is dead. He died 2 weeks back because of fatty liver. And he's only 58. This is because of sheer lack of control on food. Just lack of, और वो उनको ऐसा लगता है कि डायबिटीज ऐसी बीमारी है ना कि आपने एक बार मेडिसिन खा लिया तो आप कुछ भी खा सकते हो. अभी they know it but they are in denial कि हमको खाना ही है. But हम लोग जिंदगी भर खा ही रहे हैं ना. हम लोग 5 बार दिन में खाते हैं. आपको और कितना खाना है? आप वो खाइए जो आपके लिए अच्छा है. You can't be enjoying your food every time. Now, food is a fuel for the body. So sometimes you have to look at food functionally also, clinically also. Food is always not an enjoyment, source of enjoyment. अब हमेशा अच्छा टेस्ट के लिए मजा आ रहा है इसके लिए आप खाते रहोगे, कितना खाओगे? फिर एक हद ऐसा आता है कि आपके ऊपर दवाइयां काम नहीं करेंगी. उसके बाद आप जब इंसुलिन पे आओगे तो भी फिर कुछ होता है. ऐसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आप इंसुलिन पे हो जाओ तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल पे. बहुत साल लगता है इंसुलिन का लेवल रेगुलेट करने के लिए. और ये this is I'm feeling very bad to narrate this incident, but unfortunately no, we hide the bad facts, and the bad facts have to be told, otherwise people don't understand. Okay, then you have kidneys, and kidneys तो double धमाका है. आपका blood pressure high होगा तो भी kidney fail हो सकता है, and if you have high blood sugar also kidney can fail. So and God has given us 2, but unfortunately दोनों साथ में खराब होते हैं डायबिटीज में. मसल सेल्स, मैंने आपको बोला, जो मसल सेल्स में जो ग्लूकोज नहीं जाता है ना, जिसके कारण हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है. मसल को ग्लूकोज चाहिए क्योंकि उसको इट हैज टू बी अ डेवलप्ड मसल ना. तो मसल में ग्लूकोज ना मिलने के कारण आप देखोगे ना कुछ लोग को बहुत दिनों के बाद डायबिटीज होने के बाद दे लुक वेरी वीक, बॉडी एकदम फ्रेल हो जाती है. दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मसल मास. दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मसल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ग्लूकोज इन द मसल. And nerve endings, so I don't know if so it's called neuropathy, and neuropathy can affect your feet. And जिनको वो प्रॉब्लम है उनको ऐसा लगता है कि कोई आइस से चुभा रहा है पैर में, किसी को लगता है हमारा पैर जल रहा है, किसी को ऐसा लगता है कि हम गर्म कोल पे चल रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड न्यूरोपैथी, जहाँ पे आपको फीट रिलेटेड इश्यूज बहुत हो सकते हैं.
एंड फॉर दैट यू हैव टू गो टू पेन मैनेजमेंट। ये आपके डायबिटोलॉजिस्ट शायद सॉल्व कर पाए, शायद नहीं कर पाए। तो आपने देखा कि बॉडी में टॉप से लेके, सिर से लेके पांव तक बॉडी का हर हिस्सा खराब हो सकता है इफ योर शुगर्स आर नॉट इन कंट्रोल। सो एम्पुटेशन, आपका पैर अगर गैंग्रीन हो गया तो डॉक्टर बोलेगा कि आपका पैर काटना पड़ेगा। इसके अलावा अगर गैंग्रीन में पैर नहीं काटा तो पॉइजन पूरे बॉडी में फैलेगा एंड इट विल लीड टू डेथ। So, and skin, people who have blood sugars not in control, they have lot of skin infections. So, हमको लगता है सर्दी में कुछ हो रहा है, गर्मी में कुछ हो रहा है, नहीं. If you have diabetes, high blood sugar levels, your skin infection is probably because of your high blood sugar levels. Okay, so this is what I said. Neuropathy is damage to the nerves. जो blue में underline है उसको देखिए please. Retinopathy is related to your eye, and nephropathy means kidney damage. Okay, so what are the four things, so आपको क्या चीजें मतलब कंट्रोल में रखनी है? आपको खाना कंट्रोल में रखना है, मेडिसिन कंट्रोल में रखना है, एक्सरसाइज और टेस्ट्स। सो दीज आर द फोर वेरिएबल्स। लेट्स कम टू फूड। फूड का ना आपको हर किसी ने बहुत कुछ बताया होगा। आप राइस मत खाओ, रोटी मत खाओ, मैदा मत खाओ, ये मत खाओ, लेकिन लॉजिक क्या है? मैं आपको आज खाने का डिटेल नहीं बताने वाली, मैं आपको लॉजिक समझाने वाली हूँ। दो तरह के खाने होते हैं। एक होता है हाई ग्लाइसेमिक, इसमें जो जीआई लिखा है ना, इट मींस ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इट इज। एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब आप जब एक रोटी, चावल, मैदा, जो भी है, मिलेट्स, ओट्स, जो भी है, बाजरा, रागी, आपको जो खाना आप वो खाएंगे, वो आपके बॉडी में जैसे ही जाएगा ना, वो शुगर रिलीज करना स्टार्ट करता है। जो चीजें बॉडी में जाके ग्लूकोज या शुगर बहुत फास्ट, बहुत रैपिडली रिलीज करते हैं, उनको हाई जीआई फूड्स बोलते हैं। और जो चीजें बॉडी में जाने के बाद शुगर या ग्लूकोज स्लोली रिलीज करते हैं, उनको लो जीआई बोलते हैं। आप अगर ये ग्राफ देखोगे तो ये जो रेड वाला है, ये तो है व्हाइट चावल, मैदा, ज्यादा गेहूं खाएंगे तो आप ज्यादा भी और आपको पोर्शन साइज पे भी कंट्रोल, आप कितना खाते हो वो भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। आपने अगर समझो व्हाइट राइस दबा के खा लिया तो आपका शुगर ऐसे लाल जो ग्राफ है ऐसे ऊपर जाएगा और आपका 2 घंटे में रीडिंग आएगा 300, विच आपको भी पता है बहुत खराब है। लेकिन उसके बदले में आपने ब्राउन राइस खाया, ठीक है, या आपने रागी या बाजरा जो भी आप खाते हो वो खाया, जो स्लोली ग्लूकोज रिलीज करता है, वो आपके बॉडी में जो पीला लाइन है, वैसे देखिए आपका शुगर लेवल दोनों में, लाल और ऑरेंज में, कितना नीचे है ऑरेंज में, आपका 300 नहीं गया ना, आपका प्रोबेबली 160, 170, 180 पे रुक गया। और आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगा क्योंकि आपका शुगर लेवल बहुत नीचे आराम से आएगा। जो लोग मैदा खाते हैं ना, उनको 2 घंटे में जल्दी भूख, चाइनीज बोलते हैं ना लोग, हमने इतना चाइनीज खाया फिर भी 1 घंटे में भूख लगी है, इसलिए जल्दी भूख लगती है हम, बिकॉज दैट राइस इज नथिंग इन इट इज नथिंग, इट इज 0 कैलोरीज, एम्प्टी कैलोरीज बोलते हैं, मतलब आप बेकार में वो खा रहे हो, उसका आपको कोई फायदा नहीं। इसीलिए पीपल मूव फ्रॉम व्हाइट राइस टू ब्राउन राइस और रेड राइस। रोटी खाना है तो आप कंट्रोल में खाओ, बिकॉज रोटी का कोई ऑप्शन नहीं है, या आप उसमें रागी मिक्स कर लो, बाजरा मिक्स कर लो, बेसन मिक्स कर लो, आप ऐसी चीजें आपके कार्बोहाइड्रेट। एक्चुअली ना हम लोग देखेंगे ना, सी आई एम अ साउथ इंडियन, सो आई विल गिव यू अ साउथ इंडियन एग्जांपल। हमारे खाने में भी सबसे बुरी चीज राइस ही है। उसके अलावा जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, दे आर वाटरी वेजिटेबल्स, दूधी है, दूध, वी हैव बनाना जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, we have all kinds of things which are very watery vegetables, bitter gourd, all those things are very good, rasam, sambar, all our vegetables are good. The only problem is the carbohydrate. Similarly, I'm sure in other communities also, whether it's Gujaratis or Maharashtrians or Punjabis or Bengalis, your side dishes are all okay, fish is okay, chicken is okay, but जो चावल है, जो रोटी है, जो मैदा है, वो हम ज्यादा खा लेते हैं। The problem with Indians as a country is हमको ना कार्बोहाइड्रेट के बगैर खाना नहीं आता है। हमको सिर्फ कोई चावल हटा के हमारे प्लेट में सिर्फ दाल और सब्जी देगा ना, तो हम उसको डांटेंगे, हम उसको बोलेंगे क्या दिया है, ये खाना है क्या? लेकिन आप एक बार खाइए ना चावल के बगैर खाना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अब्रॉड पीपल ईट दैट, दे डू दैट, दे डोंट नीड टू हैव ब्रेड और मैदा और राइस और व्हीट विद एवरी मील, जरूरत ही नहीं है। हम घर बैठे बैठे खाते जा रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। स्पेशली रात को क्या जरूरत है आपको कार्बोहाइड्रेट खाने की? आप कहीं जॉगिंग के लिए जाने वाले हो रात को खाने के बाद, आप सोने वाले हो 2 घंटा टीवी देख के, और यू विल गो फॉर अ स्मॉल मॉडरेट वॉक। आप कोई इंटेंस एक्टिविटी, अगर आपको रात को फिर से भूख लगेगी तो यू कैन हैव लिटिल बादाम, यू डोंट नीड टू हैव कार्ब्स एट नाइट। आई एम नॉट सेइंग कि आप आज से आदत बदलो, बट ट्राई, जिनको डायबिटीज है वो ट्राई कर सकते हैं। आई हैव डन दैट, ओके। सो आई एम स्किपिंग दिस चार्ट। शुगर इज लाइक एन एडिक्शन, ये बताया गया है, एंड इन सिंपल टर्म्स, in lot of
मेडिकल ब्लॉग्स, ये सिंपली लिखा है कि शुगर इज 8 times मोर एडिक्टिव देन कोकेन। तो शुगर को आप एक ड्रग पकड़ के चलिए, इट्स अ वेरी बैड ड्रग। शुगर से वर्स्ट को हम बोलते हैं ना बच्चों को ड्रग से दूर रहो, कोकेन मत लो। शुगर इज अ ड्रग। अगर आपको शुगर की जरूरत पड़ रही है तो आपको, अगर डायबिटीज होने के बाद भी आप बोलते हो हमको सुबह के और शाम के चाय में हमको शक्कर चाहिए ही चाहिए, तो आप एडिक्टेड हो शुगर से। तो शुगर इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ एडिक्शन। ओके, इट इज 8 times वर्स देन कोकेन, इट इज प्रूवन। सो नाउ आई एम कमिंग टू, ये जो बाहर से लोग खाना मंगाते हैं ना, पिज्जा और बर्गर और चाइनीज फूड्स, यू नो, आप लोगों को पता है पिज्जा में ऊपर जो टॉपिंग आता है, ओके, हम डालते हैं ना ऊपर से रेड चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो, उसमें क्या होता है, देयर इज अ सॉल्ट कॉल्ड एमएसजी। इसको आप लोगों को पता होगा टेस्ट में, तो उसको अजीनोमोटो बोलते हैं। चाइनीज आपने देखा है छोटे छोटे बच्चे पूरा चाइनीज प्लेट खा जाते हैं या पूरा पिज्जा खा जाते हैं, जो नॉर्मली घर में 2 रोटी नहीं खा पाते हैं, वो बच्चे पूरा पिज्जा खा लेते हैं, ऊपर से कोक भी पी लेते हैं। क्यों होता है? क्योंकि जो ये जो एमएसजी है ना, ये हमारे पेट में जाके इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और जब हमारे पेट में इंसुलिन फ्लोड होता है तो हमारी भूख बढ़ती है। उसके कारण, सो इट्स एन आर्टिफिशियल डेंजरस इंसुलिन स्पाइक, अजीनोमोटो, एमएसजी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट creates artificial insulin spikes in the body which leads to excessive hunger, 1000% more hunger. इसके कारण छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के पूरा पूरा पिज्जा, पूरा चाइनीज, आप कोई भी बिस्किट ले लो, चस्का मस्का, जो आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, उसमें ऊपर टॉपिंग आपको क्यों एक, व्हाई कांट यू स्टॉप एट वन, आपको एक में क्यों नहीं रुका है? आपको कोई ना, मतलब स्वीट पोटैटो मैं आपको दे दूं खाने के लिए, स्वीट पोटैटो बॉइल्ड, आप एक खा के बोलोगे मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आपको टेस्ट नहीं आया ना। लेकिन बिस्किट कोई रोकता है एक में? कम से कम लोग आधा पैकेट खाते हैं और बोलते हैं हम तो 2 ही बिस्किट खाते हैं चाय के साथ। आपके चाय में शक्कर है, आपका बिस्किट मैदा है, ऊपर से आपके बिस्किट में अजीनोमोटो है, एमएसजी है। तो आपने अभी चाय नाश्ता, आप मुझे बोलोगे, मैं पूछती हूँ ना जो लोग डायबिटीज है उनको, आप क्या खाते हो? नहीं, हम तो बहुत कम खाते हैं। एक्सप्लेन करो, 10 आइटम बोल देते हैं, खटखट खटखट खट। ये मतलब यू आर चीटिंग योरसेल्फ अगर आपको ये सब पता है। तो ये जो लेप्टिन रेजिस्टेंस मैंने ऊपर लिखा है ना, दिस इज दैट न्यूरोट्रांसमीटर डिसफंक्शन जो मैंने आपको ब्रेन का बताया था। ये जो लेप्टिन है, ये आपके पेट को बोलता है कि भैया आपका पेट भर गया है, अभी मत खाओ। और अगर ये लेप्टिन रेजिस्टेंस हो गया आपके बॉडी में, ये हार्मोन खराब हो गया, बिकॉज यू ईट सो मच ऑफ आउटसाइड फूड, मंगा मंगा के, तो आपके साथ ये होगा। And it happens, it's going to happen more in work from home. बॉम्बे में अगर फिर से there is 3 weeks of lockdown, if husband and wife both are working, खाना मंगाने ही वाले हैं बाहर से, और यही होने वाला है घरों में, because nobody has the time to cook. तो ये है your pizza, Chinese, burgers, biscuits, ये सब में लेप्टिन भर भर के है। द नीचे जो लिखा है मैंने, एडिपोनेक्टिन, this is another hormone which tries to regulate blood sugar level. ये दोनों का काम MSG तमाम करता है. It spoils the way our bodies function. Okay, so you need to know what to eat, when to eat, how much to eat, and in what combination. ये what combination I will just touch upon it briefly. आप हर कम्युनिटी में देख लो, दाल चावल, राजमा चावल, हर कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन होता है, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, जो कार्ब्स का जो ग्लूकोज रिलीज और जो एब्जॉर्प्शन है ना, उसको स्लो करता है. आप पुराना कोई भी खाना उठा लो, कोई भी किसी भी प्रांत का उठा लो, उसमें आपको कार्ब के साथ रोटी या चावल के साथ आपको दाल मिलेगा ही. कोई भी एक तरह का, उसको राजमा बोलो, छोले बोलो, नॉर्मल मसूर का दाल बोलो, क्यों साथ में खाते हैं उसको? किसने बनाया? एक जमाने में लोगों को ये सब पता था कि कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन खाना चाहिए ताकि वो शुगर रिलीज स्लो हो जाए. अभी लोगों ने सब छोड़ दिया. अभी लोग चपाती के साथ आलू खाते हैं. आलू भी कार्ब है, चपाती भी कार्ब है. तो आपके बॉडी में क्या होने वाला है? उसके ऊपर से लोगों को कम से कम 3 चपाती चाहिए, आलू फ्राइड चाहिए, ठीक है ना. उसके बाद लोग फ्रूट खाएंगे, डेजर्ट. व्हाई डू यू वांट डेजर्ट आफ्टर योर मील? फ्रूट इज अ स्नैक. आप फ्रूट शाम को 4 बजे खाइए और 12 बजे, दोपहर को 11:30 बजे खाइए, आपके ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में. और कौन से फ्रूट्स आप खाओगे? आम नहीं, आप वो फ्रूट्स खाओगे जो आपके शुगर लेवल नहीं बढ़ाएंगे. एंड दैट इज अ लिस्ट. आई कैन शेयर इट विद वीना जी एंड शी कैन शेयर इट विद यू, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू अनलर्न. एंड ये सब हमारे जो ट्रेडिशनल इंडियन कुकिंग है उसमें सब कुछ था. एंड प्रोबेबली योर जनरेशन इज कीपिंग इट अलाइव. हमारे जनरेशन तो ये सब भूल गए. हम लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये सब पहले से था. हम लोग ने आप लोग का जो अच्छी आदत है उसको भी छोड़ दी, और हम लोग ने वेस्टर्न कंट्रीज में से हम लोग ने बहुत सारी बुरी आदतें उधार भी ले ली. तो वी आर द वर्स्ट जनरेशन 1970s के बाद जो बॉर्न हुआ ना. आप लोग फिर भी बहुत लकी हो क्योंकि आप लोगों ने अच्छे दिन देखे. यू हैव सीन द बेटर फॉर्म ऑफ लाइफ. सो आई एम सेइंग लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड.
तो आप कैसे मेजर करोगे? आपको ग्लूकोमीटर लेना ही है, आपको अपना ब्लड शुगर चेक करना ही है। आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा खाना सूट होता है, कौन सा खाना सूट नहीं होता है। So you know, I have made this, I said my glucometer is my companion, it is my conscience keeper. कल मुझे पता चला कि मैंने आम खाने के बाद मेरा शुगर 250 जा रहा है या 300 जा रहा है, तो मुझे पता है कि मुझे आम पूरे सीजन में 2-3 खाना है, रोज 4 आम नहीं खाना है, हफ्ते में 1 आम खाना है मुझे, वो भी बीच में, और आम खाने के बाद शायद 15 मिनट चलना भी चाहिए, ठीक है ना? आई एम योर कंस्ट्रेंट। जब आपका ब्लड शुगर ज्यादा दिखेगा तो आप खुद को रोकोगे, आप जब तक मेजर नहीं करोगे आप खुद को रोकोगे नहीं। सो दिस काइंड ऑफ चेकिंग विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपके बॉडी में क्या अडेप्ट होता है, क्या सूट होता है आपके बॉडी को, क्या सूट नहीं होता है, एंड दैट इज हाउ यू विल लर्न। अब मेरे ग्रुप में बहुत कुछ लोग मेरे को पूछते हैं, हम ये खा सकते हैं, हम वो खा सकते हैं। मैं बोला आपको जो चाहिए खाओ, आप खाने के बाद चेक करो 2 घंटे के बाद, अगर आपका 160 170 के ऊपर रीडिंग है तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, अगर आपका रीडिंग 170 के नीचे है तो आप वो खाओ। तो कोई किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं, आप खुद डिसाइड करो आपके लिए क्या अच्छा है। सो दिस इज योर A1C, मैंने बता दिया HbA1c ये है 6.5 सी। सो बिलो 5.7 जो नीचे ब्लू है वो आपको बोलता है कि आपको डायबिटीज नहीं है। 5.7 के नीचे 5.7 to 6.4, इनफैक्ट इट शुड बी 5.8 to 6.4 होगा तो आपको प्री डायबिटीज या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस या जिसको ना बॉर्डरलाइन ग्लूकोज डायबिटीज बोलते हैं वो है, और 6.5 के ऊपर है तो आपको श्योर शॉट डायबिटीज है। और ऐसा एक चार्ट भी आता है, तो अगर हम देखेंगे ना ये पीला वाला, आप 3rd रो में आ जाइए नीचे, ग्रीन के बाद जो पीला है, अगर आपका HbA1c 6 है तो नीचे ये लिखा है 125 आपका एवरेज है। तो ये चार्ट आपको, यही आप लोगों ने आपके रिपोर्ट्स में भी देखा होगा कि आपका मेरा आया है ऐसे 6.5, तो मेरा एवरेज शुगर 140 है पूरे 3 महीने का, 90 डेज का। मतलब आपका फास्टिंग शुगर लो था, आपका खाने के बाद हाई रहता है 180 190 रहता है, लेकिन आपका फास्टिंग 110 120 रहता है, इसलिए आपका एवरेज हो गया 140 145। सो दिस चार्ट इज अवेलेबल, आई कैन अगेन शेयर दिस। सो ये हो गया इंडिविजुअल चेकिंग, आपने फास्टिंग चेक किया, पोस्टप्रांडियल चेक किया, और आपने क्वार्टरली रीडिंग चेक किया। अब हमारा जेनरेशन जो है ना, एंड दिस इज फॉर योर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, हम लोग ना बहुत सारे चीजों में घुस गए हैं। अभी कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब 12 घंटा नहीं खाएंगे, उसके बाद 1 घंटे में दबा के जो जो खा सकते वो खाएंगे, फिर 8 घंटा नहीं खाएंगे, फिर 8 घंटे के बाद एक 45 मिनट का टाइम होता है, उसमें आपको जो चाहिए आप खाओ। ऐसा सब लोग करने लगे हैं अभी यंगस्टर्स, बिकॉज हमको शॉर्टकट चाहिए, हमको ना वो मॉडरेशन और सही तरीका नहीं चाहिए ठीक होने का। तो डायबिटीज वही बोल रहा है हमको, डायबिटीज हमको क्या बोल रहा है, आप तीनों ये ग्राफ देखिए, 1 2 3 ग्राफ है, इसमें तीनों ग्राफ का HbA1c 7 है, लेकिन जो 3 बंदे हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से 7 को छुआ है। दे हैव रीच 7 इन 3 डिफरेंट वेज। जो पहला बंदा है, आप इसको देखिए, इसका ग्राफ ऊपर नीचे, वो ग्रीन पैच के ऊपर भी जा रहा है और काफी नीचे भी जा रहा है। मतलब ये जो बंदा है ना, उसका शुगर लेवल या तो बहुत हाई रहता है या बहुत लो रहता है, उसका कभी मॉडरेट रेंज में नहीं रहता। मॉडरेट मतलब क्या है, 70 से लेके 180 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि फास्टिंग होना चाहिए 70 से लेके 110 के बीच में, और आपका खाने के बाद हो सकता है 110 से लेके जो डायबिटिक है उनके लिए 180 तक अलाउड है। आप 180 से जितना नीचे रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है, लेकिन 180 इज द मेडिकल कट ऑफ। अब ये बंदा ऊपर नीचे, प्रोबेबली दिस गाय इज डूइंग सम इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसलिए उसका जब खाता है तो बहुत बढ़ जाता है, फिर वो 12 घंटा फास्टिंग करता है तो उसका शुगर लेवल बहुत नीचे आता है। सो दिस इज द रॉन्ग वे टू डू इट। सेकेंड ऑल्सो, वाइल इसका फास्टिंग ठीक है बीच वाले बंदे का, लेकिन खाने के बाद उसका काफी ऊपर जा रहा है, ठीक है ना? तो दिस ऑल्सो इज नॉट द वेरी करेक्ट वे ऑफ डूइंग। वेरएज आप तीसरे बंदे का देखो, उसका 90% ऑफ टाइम, या इसमें 100% लिखा है, उसका 70 और 100 के बीच में ही शुगर लेवल है। मतलब जब वो सुबह उठता है बंदा तो उसका फास्टिंग 70 और 110 के बीच में ही पड़ रहा है, और जब वो खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद चेक करता है 120 मिनट के बाद, उसका 180 के नीचे ही रहता है। सो दिस पर्सन इज इन रेंज 100% ऑफ द टाइम, एंड ये नॉर्मली होता है नॉन डायबिटिक्स में। डायबिटिक्स के लिए क्या बोला जाता है? सो दिस इज फॉर नॉर्मल पीपल, नॉन डायबिटिक्स की 180 और 70 के बीच में ही है लोग। बट दिस कैन नॉट हैपन विद अस, राइट? बिकॉज हमारे में हमने देखा 8 डिफेक्ट्स हैं, शुगर डिफेक्ट्स हैं, 8 से ज्यादा है, राइट? सो हमारे में हमको बोला जाता है कि एटलीस्ट 70% ऑफ योर टाइम you be in this range. Below 70 you cannot be for more than 4%, because hypoglycemia is very dangerous. मैंने आपको बोला for older people it is very dangerous, okay? And आप
ऊपर का जो टाइम है 180 के ऊपर जो आपका रीडिंग जाता है उसको आप मिनिमाइज करिए एंड 70% ऑफ योर टाइम मीन्स आपका 24 आवर्स जो है दिन का उसका 70%. सो आई टेक अ कैलकुलेटर ऑल्सो. ओके, सो 24 into 0.7 which means so for roughly 17 hours you have to be in range. और अगर आपको ये 17 आवर्स में से ना अगर आप 8 घंटा सोते हो या 9 घंटा सोते हो, आपने रात को ठीक से खाना खाया ना, तो आप सोते सोते 8 घंटा अच्छा अचीव कर लोगे. बाकी आपको सिर्फ 10 घंटे का कोशिश करना है दिन में. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. इफ इट द 70% corresponds to 17 hours of the day and you sleep for 8 hours okay at night, और आपका रात का रीडिंग अच्छा निकला, नींद के टाइम का रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक का आपका रीडिंग बहुत अच्छा निकला, तो आपको तो सोते सोते आपने अपना रीडिंग कंट्रोल कर लिया, तो आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है. बाकी बचे 7-8 घंटे वो आपको दिन में मैनेज करना है. सो डायबिटीज इज अ गेम ऑफ एवरेजेस. आपको ये मैथ्स है पूरा, आपको पूरा स्टैटिस्टिकली इसको सॉल्व करना है. राइट नाउ आई एम कमिंग टू CGM. तो आजकल ऐसे मशीन्स मिलते हैं लोगों के लिए जिनका शुगर बहुत कंट्रोल से बाहर है. इट्स कॉल्ड कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग. ये हाथ पे लगाते हैं, इसका सेंसर होता है एंड इन अ स्मार्टफोन योर हर 5 मिनट में रीडिंग कैप्चर होता है, 5-6 मिनट में. तो आपके डॉक्टर को पता है कि आप सोचिए हर 5-6 मिनट में रीडिंग कैप्चर हो रहा है, मतलब दिन में कितने रीडिंग्स होते हैं, 1000 रीडिंग्स होते हैं दिन में. तो आपका डॉक्टर बता सकता है कि आपका कभी रीडिंग हाई जा रहा है. कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि सुबह 3 बजे जब हमारी बॉडी रेडी होती है उठने के लिए, हम लोग उठते हैं 5-6 बजे, लेकिन हमारी बॉडी 3 बजे से रेडी होती है उठने के लिए. ओके, तब हमारा शुगर हाई हो जाता है. इट इज कॉल्ड समथिंग, आई टेक यू थ्रू इट. तो डॉक्टर आपको बता सकता है कि आपका फास्टिंग शुगर क्यों हाई है, क्योंकि आप जब उठते हो सुबह 3 बजे तभी आपकी बॉडी रेडी हो रही है उठने के लिए. तब आपके बॉडी में थोड़े हार्मोन्स डेवलप ये होते हैं, रिलीज होते हैं, उसके कारण आपका फास्टिंग शुगर हाई जा रहा है. तो आपका रात को थोड़ा खाना कम करिए या आप रात को थोड़ा दवाई बढ़ाइए. दैट योर डॉक्टर विल. तो CGM इज 24 आवर्स आपका ग्लूकोज मॉनिटर होता है. इसको पूरे साल लगाने की जरूरत नहीं है, इसको 14 दिन लगाते हैं. जब आपके शुगर लेवल्स में कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल तब डॉक्टर आपको ये 14 दिन लगा के देता है और 14 दिन का रीडिंग लेके डॉक्टर आपको समझाता है कि ये आपको ये टाइम में प्रॉब्लम हो रहा है. आपके दिन के खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात के खाने के बाद आपका रीडिंग ज्यादा जा रहा है, तो मैं आपका रात का खाने का थोड़ा सा दवाई बढ़ा रहा हूँ, या आप पहले खाना कम करके देखिए, और आई विल इंक्रीज द मेडिकेशन. सो ये रीडिंग देखने के बाद डॉक्टर आपका एडजस्ट करता है दवाई और खाना. और यू कैन गो फॉर अ वॉक. खाना खाने के बाद आप अगर आधा घंटा चलोगे तो ये प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो सकता है अपने आप ही. ओके, सो टेस्ट किसके लिए करना है हमको? आंख के लिए टेस्ट करना है साल में, रेटिनोपैथी टेस्ट, ग्लोकोमा के लिए. आपका फीट चेक करना है, फीट में सेंसेशन है कि नहीं, फीट में गर्म लग रहा है कि नहीं, ठंडा लग रहा है कि नहीं. यू हैव टू टेस्ट फॉर योर किडनीज, यू हैव टू टेस्ट थायराइड, यू हैव टू टेस्ट योर कोलेस्ट्रॉल. सो जिनको डायबिटीज है उनको साल में 1 बार 2 बार 4 बार, जैसे आपका डॉक्टर नहीं बोले तो भी, क्योंकि डॉक्टर आपको नहीं बोलने वाला है आप जाके आपका एस क्रिएटिनिन करो या HbA1c करो या आप अपना आंख चेक करो, या आपको खुद समझना है, आपको लिस्ट बना के रखना है, आपके डायरी में मार्क करके आपको टाइम टू टाइम ये करते ही जाना है. फॉर एग्जाम्पल HbA1c आप साल में 4 बार करोगे, हर 90 दिन. आप अपना लिपिड प्रोफाइल, एस क्रिएटिनिन एटलीस्ट 2 बार करोगे साल में. आई टेस्ट आप 1 बार करोगे साल में. आपका जो फीट का जो टेस्ट है, आप हर दफा जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपका पैर चेक करता ही है, आपका BP चेक करता ही है डॉक्टर. So this we have to do on our own. Thyroid you have to do your blood work regularly. Yeah. Now I'm going to tell you last 3 things of the presentation. थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी, बट ये आपको कोई नहीं बताएगा एंड आई विल टेल यू दिस. इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. अगर आप डायबिटिक हो या ओवरवेट हो और या दोनों हो और आप स्नोर करते हो रात में, एंड स्नोरिंग मीन्स अनकंट्रोलेबल स्नोरिंग, कि आपके कमरे में कोई सोता नहीं है, इतना खराब स्नोरिंग अगर आप करते हो, तो ये सिर्फ स्नोरिंग नहीं है और इस पे लोग हंसते और छोड़ देते हैं या मजाक उड़ाते हैं उस इंसान का. लेकिन जब स्नोरिंग इज अ मेडिकल कंडीशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. आपका जो अंदर जो एयरवेज है ना, जहां से आपको ऑक्सीजन मिलता है, उसमें ब्लॉक होता है, इसलिए इतनी आवाज आती है. ठीक है ना. और जब डायबिटिक्स को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है तब उनका ब्लड शुगर लेवल्स बहुत हाई होता है, उनकी दवाई भी उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती है. तो बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं इसके लिए, ये मशीन लगाने को बोलते हैं पेशेंट को, ताकि वो रात को ये मशीन लगा के सोते हैं, ताकि नहीं तो रात को सोते सोते भी लोगों की मौत हो सकती है. इट इज सच अ बैड कंडीशन, लोग समझते नहीं है. ओके, मुझे भी ये प्रॉब्लम था बिकॉज 10 years बैक आई वॉज 80 kilos.
मुझे ये प्रॉब्लम था, मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप ये मशीन लगा लो, 3,000 रुपया महीना आपको रेंट देना पड़ेगा. आई सिंपली लॉस्ट 10 किलोज और ये मेरा प्रॉब्लम चला गया. सो इफ पीपल आर ओवरवेट एंड हु हैव ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, आप सिर्फ वेट कम करो, आपका ऑटोमेटिकली ये स्नोरिंग का प्रॉब्लम, पहले आप कोशिश कर सकते हो डॉक्टर के पास जाने से पहले कि आप ये कम करो. And I am not even talking about other problems which are related to sleep apnea. Blood pressure हो सकता है, आपको weight बढ़ सकता है. I am talking only about things which are related to diabetes. अगर आपको obstructive sleep apnea है, तो आपको डायबिटीज के अलावा भी एक 10-12 चीजें ऐसी हो सकती है which are very dangerous. आपके घर में कोई भी स्नोर करता है badly because of stress और late working, और उनका काम बहुत स्ट्रेसफुल है, उनका वेट ज्यादा है, उनको ब्लड प्रेशर है, प्लीज चेक फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. ये लोग बताते नहीं है, आई डोंट नो व्हाई. लास्ट 2 सीक्रेट्स इज जिनका फास्टिंग शुगर हाई आता है, आपका पूरा दिन फर्स्ट क्लास रीडिंग रहता है, खाने के बाद आपका 150 160, लेकिन कुछ ना कुछ होने के कारण सुबह आपका 120 30 40 कम होता ही नहीं है. डॉक्टर भी कोशिश कर रहा है बहुत सालों से. यू मे हैव वन ऑफ दीज 2 थिंग्स. यू मे हैव समथिंग कॉल्ड एज द डॉन फिनोमिनन और द सोमोगी इफेक्ट. इन सिंपल लैंग्वेज, मॉर्निंग में जब हम लोग उठते हैं ना, स्पेशली पहला वाला डॉन फिनोमिनन, जब मैंने आपको बोला ना, हम तो उठते हैं 7 बजे 6 बजे, लेकिन 3 बजे हमारी बॉडी उठने के लिए प्रिपरेशन चालू कर देती है. सो उसमें से कॉर्टिजोल करके जो स्ट्रेस हार्मोन है वो भी रिलीज होता है. इसके कारण ग्लूकोगॉन भी लिवर प्रोड्यूस करता है वो टाइम पे, क्योंकि उठने के लिए ताकत चाहिए ना, उठ के काम करने के लिए. सो जो ग्लूकोगॉन लिवर स्टोर करता है ना, लिवर ग्लूकोज रिलीज करता है बॉडी में. इसके कारण, और जब ये होता है ना नॉर्मल लोगों में, तभी बॉडी इंसुलिन भी प्रोड्यूस करता है, तो ब्लड शुगर कंट्रोल में. हमारे में क्या होता है, इंसुलिन इतना प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए हमारा जो ग्राफ है ना वो ऊपर चला जाता है. इसलिए बहुत लोगों का आप देखोगे डायबिटीज बोलेंगे कंट्रोल में, लेकिन सुबह का रीडिंग कंट्रोल में नहीं आ रहा है. सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस. एंड सेकंड वन इज द सोमोगी इफेक्ट. दिस टिपिकली हैपेंस बिकॉज ऑफ लेस मेडिकेशन, मोर फूड लेस मेडिकेशन, मोर इंसुलिन. तो ये चेक करके, तो डॉक्टर, मैंने आपको बोला ना, वो कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग मशीन पे डालते हैं 24 घंटे के लिए, 14 दिनों के लिए. तब डॉक्टर आपका 3 बजे का रीडिंग जो सुबह का है वो देख के पता लगा लेता है कि आपको डॉन फिनोमेनन है कि सोमोगी इफेक्ट है. तो एंड देन दे सॉल्व इट, बिकॉज दे विल से कि आपका इंसुलिन बहुत ज्यादा है. तो सोमोगी इफेक्ट में क्या हो रहा है, इंसुलिन ज्यादा होने के कारण आपका बॉडी का शुगर बहुत लो हो रहा है, बहुत लो, 70 से भी नीचे चला जाता है. फिर बॉडी क्या बोल, बॉडी तो इज रेडी टू फाइट ना, तो बॉडी बोल रही है शुगर लो हो रहा है, एंड देन द लिवर विल रिलीज ग्लूकोज, और फिर लो होने के बाद इट गोज हाई. तो दिस इज कॉल्ड रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया. रिबाउंड मतलब हाइपोग्लाइसीमिया होने के बाद आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, लो ब्लड शुगर होने के बाद आपका ब्लड शुगर बहुत हाई जा रहा है. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी डोंट आस्क आवर डॉक्टर्स, बिकॉज हमको डायबिटीज के बारे में इतना क्यों पता होगा. Neither do sometimes doctors explain, because in India doctor-patient ratio is very bad. Doctors don't have time, and there's a lot of queue all the time. There's a lot of rush. Patients don't listen. Test करके आते नहीं हैं. जो डॉक्टर बोलता है ऐसे खाओ वैसे खाओ, सुनते नहीं हैं. फिर डॉक्टर हर टाइम इंसुलिन बढ़ा देता है, फिर पेशेंट और नाराज हो जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, डॉक्टर चेंज कर देते हैं. तो this things just become really bad. So that's really it from my side. Veena ji, you want to open it for question? Yeah, you can. Little time is there. Sure. But you really, kudos to you for, you can stop sharing the screen. I'll do that. So how do I do this? Stop share. Click on stop share. Yeah. That was superb. Tremendous. Anybody wants to ask anything one by one, little, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट के अंदर. पानी पी लो गीता. Sorry? पानी पी लो. डॉक्टर साहब, ये जो बोलते हैं कि She is not doctor, Sandhya. I'm a diabetes educator. I'm not, and I'm a diabetic patient for 14 years. डॉक्टर साहब जो बोलते हैं कि शुगर फ्री डाल के खाना चाहिए, is it good? Safe to drink. I will answer this a little differently. आपको शुगर फ्री की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि तो हमारा जो ब्रेन है ना, मैं आपको आंसर देती हूँ. हमको शुगर के साथ चाय पीने की आदत है या कॉफी, राइट? हमको बचपन से आदत है. हमको अचानक से एक दिन बोला जाता है मत पियो, आप चाय पियो लेकिन आप उसमें शक्कर मत डालो. वो हमारा ब्रेन ऐसा वायरिंग हो गया है ना कि शुगर हमको एडिक्शन हो गया है. तो हमको शक्कर के बगैर चाय में मजा नहीं आ रहा है.
but it is because of an addiction. और आपको जितना आपको मीठा खाने का मन करेगा ना, आप उतने मीठे ऑप्शंस ढूंढते जाओगे। आप शुगर फ्री, फिर स्टिविया, फिर आप स्टिविया लोगे, 1 ग्राम का 10 रुपया है, ठीक है ना, आप उसमें से मिठाई बनाओगे, फिर वो मिठाई खाएंगे लोग, फिर भी मिठाई में तो मावा है, मैदा है, पता नहीं क्या है, किसी ना किसी चीज से तो मिठाई बनेगी, तो उसमें आपको शुगर हार्म नहीं करेगा तो भी वो मैदा हार्म कर जाएगा, गेहूं हार्म कर जाएगा, या राइस हार्म कर जाएगा। तो माय आंसर इज स्टिविया, शुगर फ्री। आप ये सबको ना एक गांठ बांध के थोड़े दिन के लिए आप इसको छुपा दो अपने ब्रेन में से, और आप थोड़े दिन ट्राई करो कि आप बगैर शक्कर के चाय या कॉफी। मैं आपको बोलूं, मैं अभी 10 साल से मैंने डायरेक्ट शुगर नहीं लिया है, ठीक है, कुछ कभी कभी हो जाता है, यू कैन अवॉइड। मुझे आज पता चला कि शुगर, दूध में मिठास है, मुझे आज पता चला कि सब्जियों में मिठास है। आई एम एक्चुअली एबल टू टेस्ट द नेचुरल फ्लेवर ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स। हम लोग शुगर डाल डाल के हर चीज को करप्ट करते हैं, द वर्ड इज करप्ट। और आपको शुगर की जरूरत नहीं है, वी डोंट डू सो मच वर्क कि हमको डायरेक्ट ग्लूकोज, डायरेक्ट शुगर की, हमको फ्रूट में से फ्रुक्टोज मिलता है, मिल्क में लैक्टोज मिलता है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, चावल रोटी ये सब खाते हैं, उसमें से भी आपको ग्लूकोज मिलता है, आपको डायरेक्ट शुगर क्यों चाहिए? और आपका ब्रेन जो बोल रहा है ना मुझे शुगर टेस्ट करना है, टेस्ट करना है, आप उसको रेजिस्ट करिए, आप उसको मना करिए ब्रेन को कि नहीं खाना है, नहीं खाना। यू हैव टू टॉक टू योर ब्रेन। हलवे जैसी चीजें वगैरह होती हैं तो कभी कभी अपन सोचते हैं ना कि मीठा, आप डाल सकते हो, आप डाल सकते हो, लेकिन जो डायबिटिक आपके घर में है, जो डायबिटिक है आपके घर में, आप उनको वो हलवा खिलाइए शुगर फ्री वाला, और सिर्फ हलवा खाने के बाद 2 घंटे के बाद उनको चेक करने बोलिए, अगर उनका शुगर 170 180 के नीचे है तो भले खाए, लेकिन नहीं है। और गुड़ नहीं, गुड़ नहीं, और गुड़ सब्स्टिट्यूट नहीं, गुड़ सब्स्टिट्यूट नहीं है, गुड़ शक्कर ही है। डॉक्टर गीता, गुड डेट्स अवॉइड। डॉक्टर नहीं है रे। डॉक्टर गीता, यस may I ask one question? यस, प्लीज प्लीज। I am Anand Saxena. यस सर। This natural fruits में जो शुगर होता है, बनाना, हाँ सर। papaya, watermelon, like that. So is that also harmful or it affects our this thing, grapes, like that? So that also affects our condition of diabetes. Yes, I'll answer this question. Okay. See, like I spoke about glycemic index just now. So I explained the concept of glycemic index. Ki some things when we eat, the sugar releases in the body very fast, and in some things the sugar releases in the body very slowly. Okay, so this is valid for fruits also. So some fruits are high glycemic index, and some fruits are low glycemic index. Okay, so you have to choose fruits which are low glycemic index for diabetics. The second is most, I'll just tell you one thing where people go wrong is people have fruits after dinner or lunch. Most of the people do that कि हम अभी चलो खाना खा लिया पेट भर के, फ्रूट क्यों खाना है आपको खाने के बाद? आपने वैसे भी बहुत खा लिया है, आपको फ्रूट्स को स्नैक्स जैसा ट्रीट करना है। जब भी आप समझो आप 8 बजे नाश्ता करते हो सुबह, ठीक है ना, और आप लंच 1 बजे करते हो, ठीक है ना, आपको 11:30 12 बजे भूख लगेगी तो आप एक फ्रूट खाइए। खाने के बाद नहीं, खाने के बाद फ्रूट्स हाथ ही नहीं लगाने हैं। फिर से आपका, या आपको अगर शाम को खाना है तो आपने खाना खा लिया लंच, और आपका डिनर समझिए 8 बजे है, तो आपको 1 या 2 बजे से लेके 8 बजे तक इतना गैप है, आप 4 बजे फ्रूट खाइए। और वो टाइम पे आप देखिए, अभी ग्रेप्स में प्रॉब्लम क्या है, ग्रेप्स आर रियली स्वीट, दे आर वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आप दो ग्रेप्स खा के रोक पाओगे? 2 दाने? नो, तो मत खाइए सर, उसके बदले में एक छोटा पीस पपाया खा लीजिए। आप आम मत खाइए, पेरू खाइए। आपको हर चीज खा के चेक करना है कि हम ये खा सकते हैं कि नहीं, और हम खा सकते हैं कितना खा सकते हैं। खाए तो क्या खाए? अब एक वेफर का ऐड आया था, नो वन कैन ईट जस्ट वन, आपको याद होगा, लेज या किसी का, नो वन कैन ईट जस्ट वन। एक वेफर खा के हम रोक सकते हैं, एक बिस्किट खा के रोक सकते हैं, पूरा पैकेट। वो चीजें मत खाइए जो आप एक खा के नहीं रोक सकते ना, वो मत खाइए, सिंपल है। Gita, I just want to ask about rock sugar. What about rock sugar? No, everything is sugar. Coconut sugar, rock Okay. sugar, Brown sugar. Acha. For diabetics, it's a Thank you. Yeah. Okay, Geeta ji, Yes. I just want to know whether we can have dates. Dates चलते हैं क्या? Again, 1 or 2 dates, Okay. not with your meals, in isolation. In isolation, Okay. 2 hours after food. Or No, because I'm not diabetic.
तो हाँ, ड्राई फ्रूट्स के साथ डेट्स भी ले रही हूँ, तो इज इट ओके? you can eat. If you are not diabetic, you are lucky. Please go. for it. No, thank you. Even God I am not, blessing. even I am not, It's- Aruna, it's even I God- am not diabetic. It's God blessings that even- Yeah, even I am not. गीता जी एक सवाल है मेरा कि बोलिए। खाना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट खाने के बाद थोड़ा कुछ मीठा या कुछ एक खा लिया, थोड़ा एक आध ब्रेड ज्यादा खा लिया, परोठा खा लिया तो नींद आ जाती है. इज इट गुड और बैड? आई डोंट नो. सर तो थोड़ा Heavy सा break. ना, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आप 3 स्लाइस ब्रेड खाते हो ना, ठीक है, तो आप एक उसको खाना। पहले 2 करिए, 1/3 Okay.